Good morning guys, Manish Lakhera this side from EMS Lifesaver. I hope you guys are doing great and everything is fine with you and your family. So guys, in this video I'll be talking all about cardiac emergencies which is related to your heart. So basically what is the location of heart that we will discuss here, how it works, and if there is heart attack, what actually happen inside the heart, and once there is heart attack, what are the warning signs, how we need to find out the symptoms, and what kind of right first aid we have to provide within the golden hour. As I already discussed in my previous video, what is golden hour. Within that golden hour we have to transport that patient with minimal precautions to the hospital. Also in this video I will cover all about the risk factor for the cardiac emergencies and all the emergency which is relevant to the same. You know what, right now might be you guys are okay, you don't have any cardiac emergencies or all these situations, but in future, to avoid such kind of mishappenings, you have to take care of your health and you have to avoid all these mishappenings by doing right kind of things. So all these things I will be discussing in this video. Also I request you, if you find this video is very useful and it's really very informative, please do subscribe the channel, press the bell icon for upcoming updates. Also share it to the maximum people. So it's very important because saving life is a very great job on the earth. So you should share this video to the maximum people, and definitely this action can save number of lives. So now let's take a move towards the main course. So now what is the exact location of heart? It is just right behind your sternum. ये जो आपका breast bone है, ये यहाँ पे इसके ठीक पीछे से होता है. मेडिकल में हम इसे कहते हैं रेट्रोस्टर्नल. रेट्रो मीन्स behind and sternal means sternum, this bone. Okay. So इसके ठीक पीछे होता है. It is in the center and just tilted slightly towards the left side. Okay, it is not in the right side, it is not in the left side, it is just in the center and tilted towards the left side. अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है. बेसिकली इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में. राइट साइड में क्या होता है कि ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है, इसीलिए राइट साइड में आपको ब्लू कलर दिख रहा है वीडियो में. और फिर वो राइट साइड के ही द्वारा नीचे वाले चैम्बर से उसको लंग्स की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए पंप कर देता है. जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई होके वापस लेफ्ट साइड में आता है तो आप देख लीजिए उसका कलर रेड में टर्न हो जाता है. इट मींस उसमें ऑक्सीजन आ चुका है. ओके, एंड वही लेफ्ट साइड के लोअर चैम्बर्स के द्वारा बॉडी की तरफ पंप कर दिया जाता है ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके. यहाँ पे देखने वाली बहुत ताज्जुब की बात है कि हार्ट खुद तो ब्लड कंटेन करता है इसके चैम्बर्स में, लेकिन डायरेक्टली वहां से अपने लिए ब्लड नहीं लेता, क्योंकि ये खुद एक ऑर्गन है, इसको भी सप्लाई चाहिए. सो ये डायरेक्टली नहीं लेता, बल्कि उसी पाइप से ही अपने लिए कुछ मेजर पाइप्स लेता है, मेजर ट्यूब्स लेता है. उनको कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है. जो ट्यूब पूरी बॉडी के लिए जा रही है, वहीं से वो ट्यूब्स निकलती हैं, उनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी. और इसके थ्रू इसमें इसकी खुद की दीवार में ब्लड सप्लाई जाती है ताकि इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ये अच्छे से काम कर सके. अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्या है. आप देख पा रहे हैं कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई इसकी ट्यूब्स के थ्रू जाती है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, वो ट्यूब अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाए सो उसकी दीवार में ब्लड सप्लाई ना जाने से उसकी वॉल की डेथ हो जाती है और इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक. मेडिकल में इसको बोला जाता है MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस. मायो मींस मसल, कार्डियल मींस हार्ट, इंफ्रैक्शन मींस डेथ, मींस हार्ट की मसल्स की डेथ होना ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. सो वो लैक क्यों हो रही है? ब्लॉकेज की वजह से. ब्लॉकेज होने के कारण क्या है आप देख सकते हैं, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है. सबसे पहले जो ट्यूब की जो अंदर वाली लेयर है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स जमा हो रहे हैं, जिसको चर्बी बोला जाता है, जो कि मीट से मिलता है, ये जो आप नॉनवेज खाना खाते हैं. और दूसरा जो भी आप ऑयली फूड खाते हैं, तला भुना खाना, उससे ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं. ये धीरे धीरे चर्बी का काम करते हैं और ये उस पाइप में जमा होने लगते हैं और एक दिन वो पाइप में वो मेम्ब्रेन फट जाती है और वो पूरी चर्बी ब्लड में आ जाती है और वहां पे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं और हार्ट की सप्लाई कंप्लीटली रुक जाती है. दूसरी प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है आप देखने को मिलेगा कि कुछ कंडीशन जो कि लेस कॉमन है, बट या इट्स आल्सो क्रिटिकल, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ऑफिस से बार बार सुट्टा ब्रेक के लिए बाहर चले जाते हैं. सो इन लोगों में क्या होता है कि इनकी आर्टरीज धीरे धीरे स्वेल करने लगती है, स्पाज्म करने लगती है, उसको कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म बोला जाता है. और ये इस तरह से आर्टरी नैरो हो जाती है और इजिली ब्लॉक हो सकती है और आगे का सप्लाई रुक सकता है. और एक और लेस कॉमन कॉज है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन. बहुत लोगों में ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का. सो ब्लड प्रेशर की वजह से बार बार इंपैक्ट पड़ता है वॉल पे, वो कमजोर हो जाती है, वो फट सकती है अंदर से और वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं. आजकल आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस डॉक्टर बता रहे हैं. इसका रीजन क्या है कि इसकी वजह से हार्ट में इंफेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन आती है, उसको बोला जाता है मायोकार्डियाटिस. मींस कार्डियक मसल्स में
इन्फ्लामेशन मीन्स वहां पे सूजन आ रही है, आइटिस मीन्स सूजन आ रही है, और क्लॉट बनने के भी चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक। देखो गाइस, हार्ट में जो ट्यूब जा रही है वो बेसिकली पहले तो सिंगल ट्यूब है, धीरे धीरे वो दो में डिवाइड हो रही है, फिर दो और ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। सो इसके ब्लॉकेज किस एरिया में आता है उस पर डिपेंड करता है कि ये हार्ट अटैक का कौन सा टाइप है। अगर ये ब्लॉकेज स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जहां पे मेन सप्लाई आप देख सकते हैं वीडियो में, सो यहां पे अगर आ जाता है तो इसको बोला जाता है मैसिव हार्ट अटैक। एक मैक्सिमम पोर्शन हार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाता है वहां का। दूसरा आता है मेजर हार्ट अटैक, मींस जहां पे वो ब्रांच में डिवाइड हुई उनमें से किसी एक ब्रांच में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वहां पे इफेक्ट करता है, दैट इज मेजर हार्ट अटैक। और अगर वो नीचे किसी छोटी मोटी ब्रांच में आके फंस जाता है तो इसको अपन बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कौन सा वाला ज्यादा क्रिटिकल है और कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, तो मेरा मानना यह है कि अच्छा तो कोई सा भी नहीं होता, और क्रिटिकल डिपेंड करता है कहां पे ब्लॉकेज है। सो प्लीज अगर सिम्टम्स मिल रहे तो वो क्रिटिकल है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप की, कि आपको पहचान कैसे करनी है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। कुछ मेजर सिम्टम्स जो लोगों को मालूम है कि छाती में दर्द होता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको पसीना बहुत आता है। सो इसको थोड़े से ब्रीफ करते हैं। जैसे कि अगर वो छाती में दर्द हो रहा है तो गैस की वजह से भी हो सकता है, तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये गैस का पेन है या हार्ट अटैक का पेन है। देखो, गैस का पेन बर्निंग सेंसेशन होती है, बोरिंग नेचर होता है कि वहीं पे हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कहीं ज्यादा रेडिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट अटैक का पेन है ये स्क्वीजिंग नेचर है, निचोड़ने वाला दर्द होता है, ऐसा लगता है कुछ चीज पकड़ के टाइट से कस रहा है, टाइटनेस, प्रेशराइज पेन है। एंड यहां पे आपको ऐसा लगता है कि छाती में ना हाथी ने पांव रख दिया है, बहुत हैवीनेस फील होती है पेशेंट को, और साथ में उसकी सांसें फूलने लगती है। बट ये जो पेन होता है ये रेडिएट होता है, यहीं पे नहीं रुकता, ये लेफ्ट आर्म में जा सकता है, जॉ लाइन में जा सकता है, नेक में जा सकता है, अपर बैक में जा सकता है, और समटाइम्स ये राइट साइड में भी जा सकता है। सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसका नेचर रेडिएटेड है। अब इसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने की वजह क्या है कि हार्ट सफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, तो वो बैक मारेगा लंग्स में पूरा ब्लड, और उसकी सांसें फूलने लगेंगे पेशेंट की, ठीक है। तो हैवीनेस होती है, उसको बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में। और एक और प्रॉब्लम आती है उसको कोल्ड स्वेट, बहुत ठंडा पसीना आएगा, इवन एसी के सामने भी पेशेंट बैठा हुआ है, और यहाँ पे उसको फेंट सा फील होगा, डिजीनेस फील होगा, उसको नॉजिया वोमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है, लाइट हेडेक हो सकता है पेशेंट को। तो ये सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करने हैं उस पेशेंट में, और बहुत घबराहट और बेचैनी होती है पेशेंट में ना, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। तो ये सब चीजें आपको देखनी है पेशेंट में। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर जो कुछ आपने बताया ऐसा तो सिम्टम्स कुछ आए नहीं पेशेंट में, और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको अटैक पड़ा है, तो कैसे। और कुछ लोग कहते हैं सोते सोते अटैक पड़ गया, वो सब है क्या। इसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। इसका सोने से रिलेशन नहीं है, इसका किसी और चीज से रिलेशन नहीं है, इसका सीधा रिलेशन है कि यहां पे पेन नहीं होता, और पेन ना होने की वजह है न्यूरोपैथी, मींस उसकी जो नर्व्स हैं जो पेन को सेंस करती हैं वो पेन को सेंस नहीं कर पा रही हैं, और वो न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, जैसे डायबिटीज की वजह से हो सकती है, उसके लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करने की वजह से हो सकती है, किसी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो लोग किसी और वजह से ले रहे हैं और उनसे ये डेवलप हो सकती है न्यूरोपैथी। और कुछ वजहें हैं, जैसे फीमेल में एक हार्मोन होता है जो पेन को सेंस करने में हेल्प करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। और ऑल्सो वो हार्मोन कंट्रोल करता है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसीलिए कहते हैं कि फीमेल्स में अटैक कम पड़ते हैं, लेकिन 45 साल के बाद उनमें यही हार्मोन नहीं मिलता, सो उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और ये हार्मोन जब नहीं रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में अगर अटैक पड़ा तो पेन भी सेंस नहीं कर पाएगा उनका बॉडी, क्योंकि ये हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है उस विसरल पेन को, इंटरनल पेन को सेंस करने के लिए। सो उनमें भी चांसेस है साइलेंट हार्ट अटैक के, वो लोग रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बूढ़े लोग हैं उनमें भी ये चांसेस है न्यूरोपैथी ऑटोमेटिकली डेवलप होने की वजह से। ओके, बट यहां पे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी के सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, यहां पे जलन सी हो सकती है, बहुत अजीब से डकार आ सकते हैं, ठीक है, जी मिचला सकता है पेशेंट का, उसको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ये सब सिम्टम्स आपको बराबर मिलेंगे उसमें। सो आपको डिफरेंशिएट करना है कि वो जी मिचला रहा है, घबराहट हो रही है, वो गैस की वजह से नहीं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हार्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ओके, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आपको क्या करना है वहां पे, सबसे पहले आपको उसको रीएश्योरेंस देना है, सांत्वना दे रही है, धैर्य बंधवाना है उसका, क्योंकि इससे बड़ी मेडिसिन कुछ नहीं है, इसमें यकीन मानिएगा।
आपको क्या करना है, उसको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस नहीं देना है। आपने नोटिस किया होगा जब आप भागते हैं बहुत तेज या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सोचने के लिए और चलने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है और वो डिमांड हार्ट को ही पूरा करना होता है। इस सिचुएशन में बेचारे का खुद का सप्लाई नहीं हो रहा है, कहां से आपकी डिमांड पूरी करेगा? उल्टा उसका और ज्यादा डेथ होगा। सो आपको ये दो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। यकीन मानिए आपका पेशेंट आपके हाथ में है। दूसरी चीज, आपको उसको क्या करना है, इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, 108 को, 102 को और 112 को, राइट? क्योंकि एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि वो सेफली आपके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर सकें। अपने आप गाड़ी में लोड मत कीजिए, क्योंकि होगा रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कोई आपकी सुनेगा नहीं और फिर पेशेंट की जान चली जाएगी रास्ते में। एम्बुलेंस का सायरन होता है, वो लोग पूरा अनाउंस करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल इमरजेंसी है, तो उनको रास्ता भी मिल जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है और within 60 to 90 minutes you have to transport that patient to the right kind of hospital, right? Because it is a golden hour. इसके ज्यादा देर बाद अगर आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, so here time is a muscle. जितना देर करोगे उतना उसका मसल्स का डेथ होगा, उतनी उसकी जान खतरे में जाएगी। अब यहां पे और एक बात करते हैं, जब आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैदल तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, उसको बिठा के लेके जाइए स्ट्रेचर पे। और कैसे बिठाना है? प्रॉप्ड अप, जैसे वो चेयर पे बैठा हुआ है इस तरह से आगे की तरफ झुक जाए। क्यों? ऐसे में क्या होता है कि लंग्स को फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, वो इजीली ब्रीथ कर पाता है। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि आपको उसका टाइट कपड़ा जो भी पहना है आप उसको थोड़ा सा लूज कर देना है ताकि वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर सके। अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट है आपको जरूर पूछना है कि सर आपको जो तकलीफ हो रही है पहली बार हो रही है या पहले भी हुई है? अगर पहले भी हुई है तो आप इसके लिए कोई मेडिसिन लेते हैं क्या? आप हॉस्पिटल गए हैं इसके लिए? अगर वो गया है और वो मेडिसिन लेता है तो उसके पास वो दवाई होगी, वो दवाई देने में आप हेल्प कर सकते हैं। वो इस तरह से कुछ दवाइयां होती हैं, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरिन एंड सॉर्बिट्रेट। ये एस्प्रिन क्या करती है? क्लॉट को तोड़ देती है। नाइट्रोग्लिसरिन एंड सॉर्बिट्रेट ये पाइप को चौड़ा कर देती है, टेम्परेरी ब्लड सप्लाई वहां पे ओपन हो जाता है और ये कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ता है प्रेशर की वजह से, वो लोड कम कर देती हैं ये दवाइयां। सो इनको लेने का तरीका क्या है? एस्प्रिन च्यूएबल टैबलेट है, पेशेंट को चबानी होती है, पानी में नहीं लेना होता। और जो सॉर्बिट्रेट और एंटीजी है ये जीभ के नीचे रखना पड़ता है और ये वहीं पे डिसॉल्व होके 2 से 5 मिनट में अपना असर दे देती है। अगर 2 से 5 मिनट में उसके सिम्टम्स गायब नहीं होते, उसको असर नहीं मिल रहा है, तो आप 5 मिनट के बाद दोबारा यही सिम्टम्स चेक करके इसको रिपीट कर सकते हैं एक और बार। और याद रखिएगा इससे ज्यादा बार आप रिपीट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद भी कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। और प्लीज अपनी तरफ से उसको सेल्फ मेडिकेशन मत दीजिएगा, खुद अपनी तरफ से नहीं देना है कि सर ये आपके दादाजी को भी होती थी, वो ये दवाई खाते थे तो आप भी ले लो इसको। नो, प्लीज डोंट डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी नेवर नो कि उसको वो ससेप्टेबल है या नहीं है, उसमें कोई क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं। सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस प्रैक्टिस। ओके, यू जस्ट फाइंड आउट ऑल दीज सिम्टम्स एंड जैसे कि मैंने बताया यही चीजें आप करते करते उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की और उनका सॉल्यूशन क्या है। रिस्क फैक्टर मींस अभी तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में होने वाली, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, सो डेफिनेटली एक दिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल, ये सब चीजों की वजह से हमारी जो कोरोनरी पाइप है, जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, वो नैरो हो जाती है और ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड इट, छोड़ दीजिए इमीडिएटली, बिल्कुल छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कुछ चीज नहीं छोड़ती, इमीडिएटली छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, सो प्लीज जाके चेकअप करवाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा कि ये सब चीजें बढ़ी हुई हैं। इन सब चीजों का बड़ा होना तभी पता लगता है जब किसी को एक बार अटैक ना आ गया या किसी को ब्रेन अटैक ना आ गया, तब तक पता नहीं चलता कि उसका ये सब चीजें बढ़ा हुआ है। सो आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कीजिए, ईसीजी चेक करवाइए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, आप आपके हार्ट की इकोग्राफी करवाइए। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो आप अपने डॉक्टर से मिलने पे भी उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं इस तरह की मिस हैपनिंग से, या अपने किसी चहीते की आप जिंदगी बचा सकते हैं। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो एक्सरसाइज कीजिए, जो वेट पुट ऑन कर रखा है उसको कम करवाइए, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा धीरे धीरे हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी, बीपी का प्रॉब्लम होगा, शुगर का प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा और वो इजाद करेंगे आगे जाके हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां। तो प्लीज इसको कंट्रोल कीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी वीडियो देखी एंड उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई पसंद आई तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला है, आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं अपलोड करूंगा मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड आपको वो अपडेट हो सके। एंड
एक चीज और जरूर याद रखिएगा, आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। सो प्लीज एटलीस्ट अगर आप वाकई किसी की जान की परवाह करते हैं, सो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा इसमें।